So hello everyone, today we are again here with fraction third part. So we have discussed about fractions, type of fractions in the previous lecture. Now we will discuss some more thing about fraction. Now the first part is equivalent fraction. Equivalent fraction. Now what do you mean by equivalent fraction? ये इस the basic definition is fractions which represent the same part of a whole the same part of a whole or a collection are called as equivalent fractions. Now what does it mean? For example, if I have a circle and I divide it into two parts like this, one is shaded portion, other is unshaded. तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालता हूँ तो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ 1/2. अब ये 1/2 हो गया, यानी ये पूरे पार्ट का हमने एक हाफ इसमें से डिवाइड कर दिया. नाउ सिमिलरली इफ़ आई टेक अनदर एग्जांपल, this is a circle and I divide it into four parts like this, 1 and 4. So it contains total 4 parts. Now मुझे इसका रेशियो क्या बनाना है? 1:2. So how can I make it? By shading these two portions, this one and this one. So now the fraction will become 2/4, and after reducing it we will get 1/2. This is what an equivalent fraction is. Now the second part is how to build an equivalent fraction. For example, we have to find equivalent fraction of 1/3. Now the original fraction is 1/3. अगर मुझे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, इस 1/3 के न्यूमरेटर, दिस इज़ न्यूमरेटर एंड दिस इज़ डिनोमिनेटर, इसको मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ 1/3. इफ़ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय 2, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, सो द आंसर विल बिकम 2/6. नाउ 1/3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, so the answer will become 3/9. So these all are called as equivalent fraction. Yani 1/2, 1/3, 2/6, 3/9. These all are called as equivalent fraction. Now next part is we have to verify whether the two given fractions are equivalent or not. Now for example, if I have two fractions like 1/2 and 12/24. Now here are two fractions. तो आपको चेक क्या करना है कि the product of the numerator of the first, this is numerator of the first and this is denominator of the second. यानी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 into 24, that is equals to 24, and secondly the denominator of first fraction and the numerator of the second fraction, that is 2 into 24, 2 into 12, sorry. So this is equals to 24. Now both the values are same, तो इसमें हम कह सकते हैं this is an equivalent fraction. Equivalent fraction. जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 1/18, 2/36. Now multiply this with 36, you will get 1 into 36 as 36 and 2 into 18 as 36. So these both values are equal, so these two fractions are called as equivalent fraction. और अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आती हैं तो क्या होंगे, नॉट इक्विवेलेंट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू रिड्यूस दिस फ्रैक्शन 16/56 इनटू इट्स लोएस्ट फॉर्म. तो इसमें आपको करना क्या है, इसका न्यूमरेटर 16 है और डिनोमिनेटर कितना है, 56. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द HCF ऑफ 16 एंड 56. आई एम यूजिंग डिवीज़न मेथड ओवर हेयर. डिवीज़न में क्या लिखते थे हम लोग, यहाँ पे 56 और यहाँ पे 16 से इसे डिवाइड करते थे. नाउ 16 3 इज़ 48. ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 16 minus 8, 8. अब ये जो 8 आ गया है, इससे हम किसको डिवाइड करेंगे, 16 को, एंड वी नो दैट 8 2 16, सो द रिमाइंडर इज़ 0. सो द HCF
of 16 and 56 is 8. So we can write HCF is equals to 8. Now when HCF is 8, we have to divide these two न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 8, यानी 16 बाय 56 ये लिखा था, आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इसे 8 से और इसे 8 से. नाउ 8 2 ज़ा 16, so we can write 2 over here, and 8 7 ज़ा 56, so the fraction reduces to this value 2 by 7. Now secondly you can also solve it like this, 16 by 56. अब दोनों 2 से डिविजिबल हैं तो आप देखेंगे 2 8 ज़ा 16 एंड 2 28 ज़ा 56. सिमिलरली अगेन देखिए दोनों 2 से डिविजिबल हैं तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 14 ज़ा 28. अगेन 2 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा. सो द आंसर विल बी 2 by 7. Now moving on to exercise 7.3, the first question is write 4 equivalent fractions for each. Now 1 by 2. Now 1 by 2, अब मैं इसमें क्या करूँगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो गया 1 by 2. अब सेकेंडली देखिए 1 by 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ 2 से तो ये कितना हो जाएगा 2 by 4, दैट इज़ एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सिमिलरली 1 by 2 को अगर मैं 3 से कर दूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड, इट विल बी इक्वल्स टू 3 by 6. अगेन 1 by 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज़ इक्वल्स टू 4 by 8. सो दीज आर कॉल्ड एज 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस 1 by 2. कौन कौन से हो गए आपके 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6, 4 by 8, 5 by 10. 5 by 10 कैसे आया आपका, 1 by 2 था इंटू 5 अपॉन 5, दैट इज़ 5 by 10. सिंपल क्वेश्चन. Now second part is 3 by 5. Now again multiply and divide it by 2. So we will get 3 by 5 into 2 upon 2. Again 3 by 5 into 3 upon 3. 3 by 5 into 4 upon 4, and again last 3 by 5 into 5 अपॉन 5. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे कौन कौन से बन रहे हैं, फर्स्ट इज 3 अपॉन 5, सेकेंड इज 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25. सो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ थर्ड इज 7 by 11. 7 by 11 है, अब आप डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 ज़ा 14, 11 2 ज़ा 22. अगेन 3 से कीजिए, 7 3 ज़ा 21, 11 3 ज़ा 33, 7 4 ज़ा 28, 11 4 ज़ा 44, 7 5 ज़ा 35 एंड 11 5 ज़ा 55. तो ये क्या आ गए आपके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए. नेक्स्ट इज फोर्थ इज 2 by 3. फर्स्ट वन इज 2 by 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6. नाउ 3 से कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. नाउ 4 से कीजिए दोनों को, 2 4 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा 12. 5 से कीजिए, 2 5 ज़ा 10 एंड दिस इज़ 15. एंड द लास्ट वन इज़ फिफ्थ. नाउ फिफ्थ इज़ 4 अपॉन 5. अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 10, 12 अपॉन 15. नाउ 4 से कीजिए, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 20, 5 से कीजिए 20 अपॉन 25. सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. Now moving on to second question. Second question says that verify whether the following pairs of fractions are equivalent or not. मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, उसके लिए कंडीशन क्या यूज़ करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड. यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई व्हाट 6 into 14. Now what is 6 into 14? It is equals to 84, and 12 into 7, that is 7 into 12, this is also equals to 84. Now दोनों वैल्यूज़ अगर सेम आ रही हैं, so this function, these are called as equivalent fraction. Equivalent fraction. सेकेंड देखते हैं इसका एग्जांपल 1 by 2, 5 by 10. Now again we have to multiply 1 with 10, that is 1 into 10 is 10 and 2 into 5, यानी 2 और 5 को मल्टीप्लाई करा तब भी कितना आ रहा है 10. दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, इट सेज 1 अपॉन 8, 7 अपॉन 54. नाउ अगेन मल्टीप्लाई 1 into 54, this is equals to 54, and 8 into 7, this is equals to
56. अब मुझे दिख रहा है 54 इज़ नॉट इक्वल टू 56, सो दिस इज़ नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए, 7/11 कॉमा 35/55। नाउ मल्टीप्लाई इट, 7 इंटू 55 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 5 ज़ा 35 और 3 38, दैट इज़ 385। नाउ मल्टीप्लाई 11 इंटू 35, so 11 5 ज़ा 55, 5 carry, 11 3 ज़ा 33 and 5, so this is what, equal value 385 and 385, so this is an equivalent fraction. Now moving on to the last part, that is 5/11 comma 15/31. Now multiply 5 with 31, what you will get, 5 1s are 5 and 5 3s are 15. And second, 11 into 15. Now 11 5s are 55, 5 carry, 11 1s are 11 and 5 165. So 155 is not equal to 165. So this is not an equivalent fraction. This is not an equivalent fraction. Now the next question is fill in the box. Now we have to fill the boxes. You have seen so many boxes over here. अब इन boxes के अंदर आएगा क्या, खजाना तो नहीं आएगा, ये देखना है हमें। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर आएगा क्या। तो देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 2/3। नाउ 2 के बाद देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पे कितना हो गया, 10, यानी मैंने 2 में कितना मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 5 इज़ 10, यानी आई हैव मल्टीप्लाई इट बाय 5। अब मैंने 5 से मल्टीप्लाई अगर किया है तो मुझे 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 इंटू 5, यानी 2/3। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन था, ऊपर आपने 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 5 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10/15। सो द आंसर ओवर हेयर इज़ 15। और सेकंड देखिए आप, 2 में कितना मल्टीप्लाई करा कि 6 आ गया, 3, तो 3 में भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 3, यानी कितना हो गया, 9। अब ये देखिए 3 है, दिस डिनोमिनेटर इज़ 18। नाउ 3 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आए, यस 6, और 2 में भी कितना करना पड़ेगा मुझे, 6, यानी 2 इंटू 6 इज़ 12। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सेम आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में 2/7, 2 में कितना मल्टीप्लाई करा कि 14 आ गया, 7 टाइम्स, तो 7 में भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 टाइम्स, 7 इंटू 7 इज़ 49। और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कितना है, 21, यहाँ पे 7 है, 7 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 21 आए, 3, तो 2 में भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, 2 3 ज़ा 6। नाउ 7 5 ज़ा 35, सो 2 5 ज़ा 10, सिंपल। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ 1/2। नाउ 1 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आ जाए, 5, तो 2 में भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5, 2 5 ज़ा 10। नाउ 1 इंटू 3 इज़ 3, so 2 into 3 is 6. Now 2 into 10 is 20, so 1 into 10 is 10. Rest 3 questions are homework for you. Now moving on to the next question, we have to reduce the following into its lowest form. मैंने आपको बताया था जब भी आपको फ्रैक्शन गिवन है और इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, HCF. Now calculate the HCF. I am using division method. 56 यहाँ लिखा, 64 यहाँ लिखा, 56 1 ज़ा 56, माइनस किया तो बचा 8। नाउ इस 8 से डिवाइड करेंगे किसे, 56 को, 8 7 ज़ा 56। सो द HCF इज़ 8, HCF इज़ इक्वल टू 8। तो इस फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे हम लोग, 56/64 डिवाइडेड बाय 8 एंड डिवाइडेड बाय 8। 8 7 ज़ा 56, 7/8 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। या फिर आप उसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 से काटिए, या फिर आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है फर्स्ट। और सेकंड इज 32/56। नाउ व्हाट इज द HCF, कैलकुलेट 56, दिस इज 32। नाउ 32 1 ज़ा 32, 6 में से 2 गया 4 एंड 5 में से 3 गया 2। नाउ 24 एंड दिस इज 32, ये 32 उठ के यहाँ आ गया। नाउ 24 1 ज़ा 24, ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 8। नाउ 8 से अब मैं 24 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर इज़ 0। अब व्हेन द रिमाइंडर इज़ 0,
वी कैन से दैट 8 इज HCF इज इक्वल टू 8। तो जो भी आपका फ्रैक्शन है 32/56, आप क्या करेंगे, इसे 8 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। सो द आंसर विल बी दिस इज इक्वल्स टू 4/7। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज 39/52. 39/52. Again find HCF. What we have to do is 52 and 39. Now 39 ones are 39. On subtracting you will get 13. Now 13 से फिर से 39 को डिवाइड करेंगे तो 13 3 is 39 minus this is 0. So HCF is 13. Now when HCF is 13, we have to divide 39/52 with 13, both in the numerator and denominator. Now 13 से करेंगे तो आएगा 3/4. Clear? Next part, fourth part is 35/42. 35/42. इसका दूसरा मेथड क्या है, आपको दिख रहा है, ये 7 की टेबल्स में आते हैं. Now we know that 7 5s are 35 and 7 6s are 42. So we can clearly write it as 5/6. सेकेंड मेथड कौन सा है हमारा, HCF फाइंड करने का, और ये वाला मेथड क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू बाय डिवाइडिंग इट बाय स्मॉलर नंबर्स लाइक 2. नाउ फिफ्थ पार्ट इज 16/54. तो पहले देखिए ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, आपने क्या करा, 2 8 16, 2 27 इतना. नाउ 8 and 27, अब या तो ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, ना ही 3 से हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/27. नाउ सिक्स पार्ट इज 20/45. नाउ इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 और 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 4s are 40 and 5 9s are 45. So the answer is 4/9. Now seventh is 27/63. अब ये देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से है, 3 9s are 27, 3 21s are, अगेन 3 से, 3 3s are 9, 3 7s are 21. So we can write it as 3/7. This is seventh part. Now eighth part is 49/56. अब मुझे दिख रहा है, अगर मुझे 7 की टेबल याद है तो मुझे दिख रहा है 7 की टेबल में 49 भी आता है और 56 भी. 7 7s are 49 and 7 8s are 56. So we can write it as 7/8. Now ninth part is 18/21. Now 3 6s are 18, 3 7s are 21. So the answer is 6/7. Now 10th is 5/65. अब दिख रहा है यहाँ पे दोनों, देखिए 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा, और 5 13s are, so we can write it as 1/13. Now 11th is 22/77. अब मुझे दिख रहा है ये दोनों 11 की टेबल में आते हैं. 11 2s are 22, 11 7s are 77. And the last question is 12th 34/68. First divided by 2, 2 17s are 234. Now 17 का टेबल अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से दिख रहा है 17 1s are 17, 17 2s are 34. So the answer is 1/2. So this is the end of exercise 7.3. Thank you. सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. और अगर आपको कोई और वीडियोस भी चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. एंजॉय.